Ignited Minds Tutorials has recently released an informative series of videos focused on alternating current (AC) circuits, aimed at students studying for their 12th CBSE and Maharashtra State board exams, as well as those preparing for IIT JEE and NEET. These videos offer a comprehensive understanding of AC physics. In these tutorials, Ignited Minds Tutorials covers various concepts associated with AC circuits. They delve into topics like voltage and current in alternating current, RMS value, impedance, power factor, resonance, and more. The explanations are clear and concise, making it easier for students to grasp complex theories. The videos are designed to provide a knowledge-driven explanation, helping students not only to understand the fundamentals but also to apply these concepts to solve problems effectively. The interactive nature of the tutorials encourages active learning and ensures a productive study experience. By watching these videos, students can enhance their understanding of AC circuits, ultimately improving their performance in exams like CBSE, Maharashtra State Board, IIT JEE, and NEET. Ignited Minds Tutorials is committed to helping Ignited Minds excel academically by providing quality educational content that caters to the needs of different exam syllabi. To access this invaluable resource on AC circuits, students can visit Ignited Minds Tutorials' official website or subscribe to their YouTube channel. Empower your learning journey with these educational videos and unlock your potential in the field of physics. ओके पीपल, आज अपना AC सर्किट्स खत्म हो जाएगा. ठीक है, AC सर्किट्स का ये लास्ट पोर्शन है विच इज़ बेसिकली आपका एक जनरेटर, मतलब कैसा जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी इसमें से. ठीक है, ओके. सो व्हाट इज एन AC जनरेटर और अ डायनामो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, ये मैकेनिकल एनर्जी को भाई साहब, तो आपका जो मैकेनिकल एनर्जी मतलब मूवमेंट का एनर्जी होता है, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Actually the name generator is a misnomer because it does not generate any energy. It just converts mechanical energy into electrical energy. An AC generator is the one which produces a current that alternates or changes its direction regularly after a fixed interval of time. ठीक है, तो बस अब एक बार इधर एक बार इधर, ये कंटिन्यूस चेंज हो. AC करंट मतलब क्या होता है, जैसे हमने इस चैप्टर के शुरुआती तौर पे ही पढ़ा था कि भाई साहब आपका ये प्लस और ये माइनस, 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 ऐसा होता रहेगा AC सर्किट्स में. ठीक है, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ AC जनरेटर इज ड्यू टू निकोला टेस्ला. ठीक है, द ग्रेट यूगोस्लाव साइंटिस्ट हु बिल्ट इट इन द ईयर 1988. तो निकोला टेस्ला एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं जिनको शायद उनके काम का प्रॉपर अप्रिसिएशन नहीं मिला है. ठीक है, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. The working of an AC generator is based on the principle of electromagnetic induction. So when a closed coil is rotated, एक closed coil है, rotate कर रहे हैं हम uniform magnetic field में with its axis perpendicular to the magnetic field. तो इसका axis भाई साहब perpendicular है to the magnetic field. The magnetic flux linked with the coil changes and an induced EMF and hence a current is set up in. तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो ये coil है, ये दोनों magnets हैं, इसके बीच में coil है, इसको अपन rotate करा रहे हैं. अभी यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है. जब आप इसको रोटेट करा रहे हैं मैकेनिकली तो क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जब किसी कॉइल से एसोसिएटेड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया. जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ठीक है, सो व्हेन यू आर रोटेटिंग अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग, यू आर चेंजिंग द मैग्नेटिक flux. ठीक है, so closed uniform field with its axis perpendicular to the magnetic field, the magnetic flux links with the coil changes and an induced EMF and hence a current is set up in it. तो इसमें भाई साहब एक करंट सेटअप हो जाएगा. ठीक है, there will be a current that will be set up. Okay, now इसमें होता क्या क्या है भाई साहब, आपका ये ज़्यादा करके आपने 10th में पढ़ा ही रखा है, but still it essentially consists of the following. What are the things that a AC generator will contain? It will contain a field magnet
इट इज अ परमानेंट मैग्नेट ऑफ हॉर्स शू टाइप। तो आपका ये परमानेंट मैग्नेट होगा भाई साहब, हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट होगा, मतलब इस तरीके का मैग्नेट, ठीक है, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट होगा। इधर पे, इधर पे, ठीक है। So it contains, it is a permanent magnet of the horseshoe shape in a small dynamo, that is magneto, or it is a powerful electromagnet in a large dynamo. It produces a strong magnetic field in the region between the pole pieces. तो obviously एक बहुत बड़ा magnetic strong field produce होता है। आर्मेचर, आर्मेचर भाई साहब आपका ये है, देखो, this is basically the armature part, ये आपका आर्मेचर है, ठीक है, this is the armature part. So it consists of a rectangular coil PQRS having a large number of turns of insulated copper wire wound on a soft iron cylindrical core. The core is laminated, one to avoid losses due to eddy currents, ठीक है। तो laminated core है, मतलब इससे कुछ magnetic field ना निकल जाए, ठीक है। The soft iron core concentrates the lines of force to increase the flux density of B. The armature can be rotated in a magnetic field of the field magnet about an axis perpendicular to the field. स्लिप रिंग्स होते हैं, देखो ये आपका हो गया भाई साहब स्लिप रिंग्स, दीज आर स्लिप रिंग्स, देखो, ठीक है। तो आर्मेचर कॉइल ऐसे घूम रहा है, देखो, ये आपका कॉइल है, इसके साथ कनेक्टेड है, ये आपका कॉइल है, इसके साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे होते हैं कार्बन ब्रशेस, ठीक है। ये जब घूम रहे हैं तो कार्बन ब्रशेस से कनेक्टेड है, ये सर्किट जो है तो आपका कार्बन ब्रशेस से कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। सो the two ends of the armature coil are connected to two coaxial brass rings S1 and S2 called slip rings. These rings are rigidly fixed to the same shaft which is used to rotate the coil. The slips are insulated from each other as well as from the shaft. As the armature coil rotates, the slip rings also rotate about the same axis of rotation. तो armature coil जब rotate करेगा तो slip rings भी rotate होंगे, समझ में आ रहा है। ये गोलम गोल जो दिख रहा है आपको, ये armature coil rotate हो रहा है, तो ये भी गोलम गोल भी घूम रहा है, ठीक है। और इसके साथ कार्बन ब्रशेस होते हैं। कार्बन यहाँ पे ग्राफाइट फॉर्म में लिया गया है, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ताकि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पर्याप्त हो। टू ग्राफाइट और फ्लेक्सिबल मेटेलिक रॉड्स कॉल्ड ब्रशेस आर लाइटली प्रेस्ड अगेंस्ट। तो अभी अगर देखो रिंग घूम रहा है तो सर्किट भी घूम जाएगा ना, फिर तो समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे इस चीज को समझो, ये रिंग घूम रहा है, इसके साथ जो लगा हुआ सर्किट है वो भी घूम जाएगा, फिर तो भाई साहब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए सर्किट को सिर्फ इन कार्बन ब्रशेस से टच रखा गया है, और ये कार्बन ब्रशेस जो है इस रिंग के साथ फिक्स नहीं है, ये ऐसे ब्रश की तरह इसको जस्ट टच कर रहे हैं, रिंग घूमता जा रहा है और इसको टच कर रही है, समझ में आ रहा है भाई साहब। तो ये सर्किट आपका नहीं घूम रहा है, सर्किट अलग है, सर्किट इज कनेक्टेड टू कार्बन ब्रशेस एंड द कार्बन ब्रशेस आर जस्ट टचिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द रिंग्स। तो रिंग्स भाई साहब घूम रहे हैं और उसको भाई साहब एक कार्बन ब्रश टच कर रहा है जिसके साथ ये सर्किट है। अगर हमने सर्किट को ही रिंग्स के साथ अटैच किया होता तो ये पूरा भाई साहब ऐसे घूम गया होता है ना, क्या है। ओके ओके, सो ब्रशेस रिमेन फिक्स्ड इन देयर रग्स positions and maintain sliding contacts with the rotable slip rings S1 and S2 respectively. It is through these brushes that the current induced in the armature coil is fed to the external circuit by means of the line wires. Sources of energy: the armature coil is rotated about its axis with the help of a turbine or any other device connected to it. It is the rotational kinetic energy of the turbine which is ultimately converted into electrical energy by the AC generator. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को ही अपन किसमें कंडक्ट कर रहे हैं, एसी जनरेटर में। वर्किंग एज द आर्मेचर कॉइल रोटेट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट चेंजेस एंड सो इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट। सपोज इनिशियली द कॉइल PQRS, तो आपका देखो भाई साहब यहाँ पे PQRS, यहाँ पे भाई साहब क्या करंट फ्लो, मतलब देखो ये ऐसे घूम रहा है ना भाई साहब, ठीक है, इट इज बेसिकली मूविंग लाइक दिस। सपोज इनिशियली PQRS बीन वर्टिकल पोर्शन एंड इज रोटेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपका PQRS है, इसको अपन ने ऐसे घुमाया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, इसको अपन ने ऐसे घुमाया है, इट इज रोटेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द साइड PQ मूव्स डाउनवर्ड एंड SR मूव्स अपवर्ड। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज फ्रॉम Q टू P। तो आपका राइट हैंड रूल अगर आप अप्लाई करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो ये भाई साहब कैसे फ्लो करेगा, द करंट विल फ्लो फ्रॉम Q टू P। तो आपका करंट कहां से कहां फ्लो करेगा भाई साहब, Q टू P, ठीक है। तो ये अगर आप पूरा पूरा देखेंगे ना, एक बार करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा, एक बार करंट का डायरेक्शन दूसरी तरफ होगा। तो हर बार जो कॉइल में आपका करंट जनरेट हो रहा है उसका पोलैरिटी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो करंट का अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो व्हाट टाइप ऑफ करंट इज इट, इट इज AC करंट। तो इसीलिए हम इसको AC जनरेटर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है।
ओके, एक्सप्रेशंस फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, एन हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ए हो गया फेस एरिया ऑफ ईच टर्न, बी हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा एंगल विच द नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स विद द फील्ड एट एनी इंस्टेंट, ओमेगा द एंगुलर वेलोसिटी एट विच द कॉइल रोटेट्स। ठीक है, तो आपका भाई साहब फ्लक्स कितना हो गया, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट एनी इंस्टेंट विल बी, कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 5, दैट विल बी इक्वल टू NBA cos थीटा, NBA cos थीटा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब आपकी NBA cos ओमेगा टी, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई साहब आपकी ओमेगा टी। सो बाय फैराडेज फ्लक्स रूल द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय आपका E का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया माइनस डी फाई बाई डी टी, सो दैट विल बी हाउ मच माइनस डी बाई डी टी ऑफ NBA cos ओमेगा टी। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब NBA और cos ओमेगा टी का भाई साहब अगर आप डिफरेंशिएशन करें तो माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, साइन ओमेगा टी और ओमेगा भी बाहर आएगा, सो NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका E हो गया NBA साइन ओमेगा टी, तो E की वैल्यू क्या होती है E नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका मतलब देखो E नॉट साइन ओमेगा टी मतलब ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा E नॉट की वैल्यू हो गई NB इंटू ए, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, B इज बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड और A हो गया भाई साहब आपका एरिया। ठीक है, और सॉरी ओमेगा। ठीक है, सो वेयर अ लोड ऑफ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स, a current I flows in the external circuit, this I is equal to obviously voltage upon resistance। ठीक है, voltage upon resistance, तो ये हो गया E नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर, दैट इज I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो E नॉट की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी E नॉट बाई आर। बोथ करंट एंड वोल्टेज वेरी साइनोसोडियली विद टाइम, तो साइनोसोडियली विद टाइम है द पावर, यहाँ पे कुछ नहीं प्रूव किया जा रहा है, यहाँ पे ये प्रूव किया जा रहा है कि भाई साहब जो आपका करंट है उसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है I नॉट साइन ओमेगा टी, और जो EMF जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है E नॉट साइन ओमेगा टी। और ज्यादा विस्तारित रूप से आपको E नॉट को देखना है तो E नॉट की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब NBA ओमेगा। ठीक है, NBA ओमेगा। तो अगर करंट का और वोल्टेज का टाइम के साथ साइनोसोडियल रिलेशन है तो किस टाइप का वोल्टेज हो गया, ये AC वोल्टेज हो गया। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो ये हो गया भाई साहब आपका AC वोल्टेज। ओके ओके ओके, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन वाटर इज स्टोर्ड इन अ डैम, तो भाई साहब वाटर स्टोर्ड रहता है डैम में। पहले पानी ऐसे बह रहा था, आपने डैम बना दिया, अभी डैम बना दिया तो वाटर का हाइट ज्यादा हो गया, अभी वाटर को आप जैसे छोड़ेंगे तो वाटर एक बड़े काइनेटिक एनर्जी के साथ नीचे आएगा, जब ये आएगा तो इनको घुमाएगा, किसको, इन मैग्नेटिक टर्बाइंस को घुमाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड धनाधन चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी तो ऊपर लगे हुए कंडक्टर से करंट कंडक्ट होगा। ठीक है, द करंट विल बी कंडक्टेड। सो इन अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन वाटर इज स्टोर्ड इन अ डैम at a height from which it falls into giant water wheels or turbines. These turbines are connected to the loops of wires in the AC generators. The kinetic energy of the falling water thus gets converted into rotational energy of the turbines. तो kinetic energy जो है भाई साहब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रोटेशनल एनर्जी, एंड अल्टीमेटली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द जनरेटर। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन होते हैं। इन अ थर्मल पावर स्टेशन स्टीम इज प्रोड्यूस बाय बॉइलिंग वाटर यूजिंग कोल और ऑयल, और ये स्टीम जो है तो रन करता है। ठीक है, द टर्बाइंस कपल्ड टू द लूप्स ऑफ AC जनरेटर्स आर रोटेटेड बाय स्टीम rushing past through them and thus electrical energy is generated. Nuclear power plant, in a nuclear power plant a nuclear fuel is used instead of coal to generate electrical energy. तो अलग अलग तरीके से भाई साहब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। एडवांटेजेस AC का DC के ऊपर क्या है भाई साहब, द जनरेशन ऑफ AC इज मोर इकोनॉमिकल देन DC, ये ज्यादा इकोनॉमिकल है। द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी इजिली स्टेप अप और स्टेप डाउन बाय यूजिंग अ ट्रांसफार्मर, तो हमने स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखा है, E2 by E1 N2 by N1 होता है। ठीक है, the alternating currents can be reduced by using a choke coil without any significant wastage of energy. The alternating currents can be transmitted, तो सबसे बड़ा फायदा ये है alternating current का कि ये बहुत दूर तक ट्रांसफर किया जा सकता है विदाउट एनी सब्सटैंशियल लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पहले मतलब ये लगभग 15 साल पहले मुंबई में जो लोकल ट्रेन चलते थे वो DC करंट पे चलते थे,
तो उसको मॉडिफाई करके अभी एसी करंट कर दिया गया है, क्योंकि डीसी करंट पे काफ़ी सारा आपका करंट का लॉस होता है, ठीक है। सो दिस हैज बीन मॉडिफाइड। ओके, ऑल्सो एसी कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू डीसी बाय यूजिंग रेक्टिफायर्स। एसी मशीन्स आर, तो रेक्टिफायर्स क्या होते हैं? अच्छा, तो एग्जाम्पल उतना दूर तक क्यों जा रहा है? अडेप्टर, बस सिंपल, ठीक है। तुम्हारा भाई साहब एक जो चार्जिंग मशीन होती है जिससे तुम अपना फोन चार्ज करते हो, वो भी एक रेक्टिफायर है, वो तुम्हारा एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर है? एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, ठीक है। पीक वैल्यू एसी इज हाई, इट इज डेंजरस टू वर्क विद एसी। तो भाई साहब पीक वैल्यू जो करंट की होती है वो हाई होती है, और झटका जब लगेगा तो बहुत जोर का लगेगा, ठीक है। सो पीक वैल्यू ऑफ एसी इज हाई, it is dangerous to work with AC current. In phenomena like electroplating, electro-refining, electrotyping, AC cannot be used. तो electroplating होती है, मतलब जब समझ लो यहाँ पे कोई मेटल है, इस मेटल पे तुमको electroplating करना है, तो तुम AC करंट यूज नहीं कर सकते, तुमको DC करंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। AC is transmitted more from the surface of conductor than from inside. This is called skin effect. Therefore, several fine insulated wires and not a single thick wire are required for the transmission of AC. तो काफी सारे insulated wires की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? ओके ओके ओके। तो फॉर अ AC जनरेटर आपका जो फ्लक्स जो लिंक्ड होता है वो फाई कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? NBA cos ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF ये कितना होगा? E नॉट साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF कितना हो जाएगा भाई साहब? जब आपका साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाए तो NBA, ठीक है। E नॉट की वैल्यू आपकी भाई साहब होगी हमेशा NBA ओमेगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट ये होगा I नॉट साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा भाई साहब? I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई R, दैट इज NB। ये तो हम अपना भाई साहब इसमें भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, AC सर्किट्स में। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये रहेगा कि NBA ओमेगा हो जाएगा E नॉट की वैल्यू, ठीक है। ओके ओके ओके। कामला, ओके कमला, ओके कमला जी आई हैं, ओके। कमला पेडल्स आर स्टेशनरी बाइसाइकिल, द पेडल्स ऑफ विच आर अटैच्ड टू अ 100 टर्न कॉइल ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर। तो n की वैल्यू दी हुई है भाई साहब, आपको कितनी दी हुई है भाई साहब? n की वैल्यू हो गई 100, ठीक है। एरिया की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 0.10 मीटर स्क्वायर। द कॉइल रोटेट्स एट अ हाफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। हाफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई साहब? हाफ रेवोल्यूशन 0.5 पर सेकेंड, ऐसा है फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? अरे बोलो ना, बोलो 2 पाई f होता है भाई साहब। तो 2 इंटू पाई इंटू एफ, दैट इज 0.5 पर सेकेंड, ठीक है। तो रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा ये, दैट विल बी हाउ मच? पाई रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया भाई साहब ओमेगा की वैल्यू, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू, ओके। इन अ मैग्नेटिक फील्ड आपका भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.01 टेस्ला। इसका वेबर भी हो सकता है, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वेयर फाई इज इन वेबर, फील्ड इज इन टेस्ला एंड एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब आपका डी फाई बाई आपका भाई साहब यहाँ पे बी जो है वो टेस्ला में होगा और फाई आपका वेबर में होगा, ओके। मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली, ओके। सो आपका भाई साहब टेस्ला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल? तो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज बोलो ना, क्या हो जाएगा बोलो? NBA ओमेगा। n की वैल्यू हो गई भाई साहब 100, b की वैल्यू यहाँ पे है 0.01, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल, ठीक है। a की वैल्यू 0.1 और भाई साहब ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? पाई, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच? 3.14 इंटू 0.1, दैट विल बी 0.314 वोल्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओके, एक एसी जनरेटर है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ 50 टर्न्स, 50 टर्न्स हैं, एंड एरिया कितना है भाई साहब आपका? 2.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। एट एन एंगल, इतने टेंशन में क्यों है? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? सब ठीक ठाक? बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे भाई साहब आपका एसी जनरेटर दिया हुआ है,
एसी जनरेटर ऑफ अ कॉइल ऑफ 50 टर्न्स, एन भाई साहब आपका कितना है 50 टर्न्स, एरिया कितना है 2.5 मीटर स्क्वायर, रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड, ओमेगा आपको दिया हुआ है भाई साहब कितना है 60 रेडियन पर सेकेंड, इज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 0.30 टेस्ला, ठीक है, बिटवीन टू फिक्स पोल पीसेस, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्लूडिंग दैट ऑफ कॉइल इस कितना है भाई साहब आपका आर की वैल्यू कितनी है 500 ओम्स, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर, मैक्सिमम करंट भाई साहब कितना हो जाएगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगा भाई साहब आई नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई आर, और ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो एन बी ए ओमेगा, क्या हो गया एन भाई साहब 50, ठीक है, बी का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 0.3, ए की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 2.5, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 60, इन सबको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा वोल्टेज, कितना है भाई साहब आपका वोल्टेज 50 इंटू 0.3 2.5 इंटू 60 अपॉन, हाँ ये तो मैं ई नॉट ही निकाल रहा हूँ ना, दिस इज बेसिकली ई नॉट ही निकाल रहा हूँ, तो अगर भाई साहब आपका आई नॉट निकालना है विच इज मैक्सिमम करंट दैट इज ई नॉट बाई आर, ठीक है, तो आप कर लो भाई साहब यहाँ पे 50 इंटू 0.3 इंटू 2.5 इंटू 60 बाई आर 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 500, ठीक है, ये हो गया आपका 500, आपका आ जाएगा यहाँ पे 4.5 एम्पियर्स, ठीक है, ओके। करंट की वैल्यू अभी यहाँ पे पूछिए, तो ये तो हो गया आपका मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल व्हेन द करंट इज जीरो, तो फ्लक्स आपका कितना है जब करंट आपका जीरो है, तो और कुछ बटोले पेड़ पौधे बाहर से नहीं, सब लेकर बैठना आराम से, चकना उकना नहीं, ओके। आई की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी मतलब हो गया आपका एन बी ए ओमेगा बाई आर साइन ओमेगा टी, तो आपका फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। कौन करंट इज जीरो, करंट आपका जीरो कब होगा भाई साहब, इसकी वैल्यू जीरो कब होगी जब इसकी वैल्यू जीरो हो, ठीक है, करंट विल बी जीरो व्हेन साइन ओमेगा टी, मतलब साइन जीरो है, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाए आपकी जीरो, ठीक है, तो करंट की वैल्यू जीरो तब होगी जब यहां पे हो जाएगा आई नॉट साइन जीरो, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू जीरो हो, और फ्लक्स की वैल्यू तब क्या होगी एन बी ए कॉस ओमेगा टी, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो फ्लक्स की वैल्यू भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगी एन बी ए, ठीक है, एन बी ए, तो आपका भाई साहब ओमेगा टी जीरो देन फ्लक्स इज मैक्सिमम, द वैल्यू इज कितना एन बी ए कॉस जीरो, तो एन इंटू बी इंटू ए दैट इज इक्वल टू 37.5 वेबर्स, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब दो चीजें आपको याद रखनी है, फ्लक्स की वैल्यू क्या है एन बी ए कॉस ओमेगा टी, करंट एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आपका वोल्टेज जो है वो आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, लेकिन इस ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी एन बी ए ओमेगा, ठीक है, ई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम करंट, ठीक है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी भाई साहब क्या आई नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट बाई आर, दिस इज द मैक्सिमम करंट दैट विल बी जनरेटेड, ठीक है, क्लियरम पीपलम, ओके ओके ओके, सो करंट इज मैक्सिमम व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस दैट इज ओमेगा टी, व्हेन फ्लक्स इज जीरो, ठीक है, करंट इज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम कब होगा भाई साहब, करंट जब मैक्सिमम होगा तो आपका I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 90 डिग्रीज, तो करंट आपका हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, तो इसका मतलब आपका फ्लक्स उस टाइम पे कितना हो जाएगा, फ्लक्स कितना है आपका एन बी ए कॉस ओमेगा टी, आप एन बी ए की वैल्यू डाले उससे पहले इसकी वैल्यू डाल दीजिए, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका एन बी ए कॉस 90 डिग्री एंड दिस इटसेल्फ इज जीरो, तो आपका फ्लक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब जीरो, क्लियरम, बहुत बढ़िया, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, hence the generator would work if the coil were stationary and the pole pieces were rotated together with the same speed because this will also bring about the necessary flux change, इसमें भाई साहब फ्लक्स चेंज आ जाएगा आपका, ठीक है। An AC generator of a coil of 100 turns and cross sectional area, तो टर्न्स आपके कितने हैं भाई साहब
टर्न्स आपके कितने हैं 100 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 3 मीटर स्क्वायर, रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 60 रेडियन पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 टेस्ला, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 500 ohms। ये भाई साहब आपका डेटा दिया हुआ है। मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर। एक ही बंदा सीरियस है भाई साहब, सब के सब टाइम पास कर रहे हैं, तेरे कैटेगरी के नहीं है भाई साहब, इनको बाहर बैठने बोला था, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर। तो मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू भाई साहब आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट बाई आर। ये एक दो, ये बस ये दो बंदे ही हैं, ई नॉट बाई आर। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन बी ए ओमेगा अपॉन आर, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम करंट जनरेटेड, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू होती है भाई साहब एन बी ए ओमेगा। ओके ओके ओके। सो अभी हम भाई साहब अगर वैल्यू डालते हैं तो यहाँ पे हो गया 100, बी की वैल्यू हो गई 0.04, ए की वैल्यू हो गई 3, ओमेगा की वैल्यू हो गई भाई साहब 60 अपॉन आर, आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 500। तो आपका करंट, मैक्सिमम करंट जनरेटेड दैट विल बी हाउ मच, 1.44 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया आपका मैक्सिमम करंट। क्लियर। ओके, यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर एंड द मैक्सिमम पावर डेसिपेशन इन द कॉइल। तो मैक्सिमम पावर आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, पावर आपका भाई साहब होता है, पावर होता है वी आई। तो मैक्सिमम पावर डेसिपेशन क्या हो जाएगा, ई इफेक्टिव इंटू आई इफेक्टिव। तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब ई नॉट बाई √2, क्योंकि हमको मालूम है ये मैक्सिमम करंट अपॉन √2 होता है एसी करंट के लिए, और ये होता है आई नॉट बाई √2 दैट इज ई आई अपॉन 2, है ना। तो ई आई को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे ई नॉट आई नॉट अपॉन 2। आपका भाई साहब अगर हमको आई नॉट की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, ठीक है, ई नॉट की वैल्यू नहीं मालूम है, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। आप भाई साहब वी आई को, ठीक है, वी आई को क्या लिख सकते हैं, वी आई को भाई साहब अपन लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं आई आर आई, सो दैट विल बी आई स्क्वायर आर, तो दैट विल बी आई नॉट का स्क्वायर आर बाई 2, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा, दिस विल बी 1.44 का स्क्वायर इंटू 500 बाई 2, ठीक है। सो दैट इज हाउ मच, 518.4 वॉट्स, 518.4 वॉट्स। क्लियर है। ओके ओके ओके, अरे ओके ओके ओके। A generator develops an EMF of 120 volts and has a terminal potential difference of 115 volts, ठीक है। तो आपका भाई साहब एक जनरेटर है, उसका EMF भाई साहब कितना दिया हुआ है, EMF है आपका 120 वोल्ट्स, ठीक है, एंड हैज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V है आपका 115 वोल्ट्स। इसका मतलब समझते हैं, देखो यहाँ पे जनरेटर कनेक्टेड है, यहाँ पे आपका जनरेटर कनेक्टेड है और ये आपका टर्मिनल PD है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में टर्मिनल PD आपका कितना हो गया भाई साहब, 115 वोल्ट, ठीक है, और इधर कितना है 120 वोल्ट, ठीक है। When the armature current is 25 एम्पियर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे करंट दिया हुआ है, आर्मेचर करंट दैट इज हाउ मच, 25 एम्पियर्स, ठीक है। आपने देखो इस चीज को पढ़ा था कि अगर आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज ई, ठीक है, इज इक्वल टू, बोल सकता है कोई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है भाई साहब, आपका V प्लस आई आर, ये होता है आपका। आपने देखो ऐसा पढ़ा हुआ था ना, यहाँ पे अगर कोई सेल कनेक्टेड है तो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर होता है, ठीक है। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और ये EMF है। मतलब कैसा होता है, देखो आपके बैटरी के अंदर भी थोड़ा बहुत इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसके वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। तो E की वैल्यू होती है V प्लस आई आर, तो अपन क्या लिख सकते हैं, E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर, मतलब अपन R की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं E माइनस वी अपॉन आई, R की वैल्यू हो गई E माइनस वी अपॉन आई, ठीक है। तो E की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब, 120 माइनस वी दैट इज 115 अपॉन आई दैट इज 25, दिस विल बी द रेजिस्टेंस। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, 5/25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 5 25, तो ये हो गया 1/5 दैट इज हाउ मच, 0.2 ohms, 0.2 ohms, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया।
आपको क्या लगा हम छोड़ देंगे? नहीं नहीं, एल एल